Good morning, students. Can you hear my voice? Yes. Okay. Yes. In the last lecture, we have seen the change in the states of matter, different definitions also, melting, boiling, evaporation, condensation, sublimation, freezing. After that, examples also. On that basis, the concept today we will discuss about the units. Change in the temperature depends, and we have to write units. So today we will discuss unit of temperature, unit of temperature. Today we will discuss the topic unit of temperature. After that, SI unit of temperature. SI unit of temperature. Unit of temperature, in that we will see SI unit of temperature. After that, common unit of temperature. Common unit of temperature. What we will discuss? Common unit of temperature and SI unit of temperature. As you know that temperature is measured and we write the unit, that is degree Celsius. So this is the common unit of temperature. Common unit of temperature क्या है? Degree Celsius. We write degree and Celsius. This 0 indicate degree and C for Celsius. Okay, so we have to pronounce it degree Celsius. This is the common unit of temperature. This is the common unit of temperature. Okay. Secondly, the SI unit. SI unit of temperature is Kelvin. SI unit of temperature is Kelvin. Kelvin is written as K. Degree K नहीं लिखते हैं अपन. Why? Because the K is always in positive integers. Positive number में ही होता है. That's why we write only K. Don't write degree K. So common unit of temperature is degree Celsius. SI unit of temperature is Kelvin. The symbol is degree Celsius and here symbol is K. Okay, now we will see the different temperatures which are measured on melting point, boiling point. We can separate and explain by differentiate. Here we will write degree Celsius, here we will write K. Okay, so first melting point. Melting means solid changes to liquid. In this, when solid changes to liquid, that is it melts. The temperature is 0 degree Celsius. When any solid material start melting, temperature is measured in 0 degree Celsius. And in Kelvin, it is 273 K. You can note down these points. Common temperature, SI temperature, unit. Melting 0 degree Celsius, Kelvin 273 Kelvin. After that, boiling is 100 degrees Celsius. We write boiling 100 degrees Celsius and in Kelvin it is 373 K. ये यूनिट्स आप लोगों को याद रखना है कि
इसका कन्वर्जन करने के बाद मेल्टिंग जो है सेल्सियस में डिग्री 0 डिग्री में लिया जाता है और केल्विन 273 के में। यार ये है ना रे पापा रे। Okay, after that boiling 100 degree Celsius and Kelvin is 373 K. One more unit is there. मैम Yes. केल्विन मैम 273 से चालू होता क्या? हाँ, वैसे एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 0 है। एब्सोल्यूट वैल्यू अभी अपन देखेंगे आगे। एब्सोल्यूट इज ऑल्सो देयर। So absolute value of degree Celsius in degree Celsius and Kelvin. So Kelvin will be 0. Kelvin will be 0. Absolute value यानी जैसे वो स्टार्ट होता है, it is 0 in Kelvin. But in this process, ये जो lesson है इसमें अपन ने बताया change of states of matter. So in this anything we start from 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. ये बीच में ही अपन measurement निकालते हैं in degree Celsius. Thermometer, all of you know. In 7th standard you have learned different types of thermometer. Thermometer आपने learn किया था 7th standard में. That is laboratory thermometer, clinical thermometer, digital thermometer is also there. So the measurement we measure in degree Celsius. जो clinical thermometer है doctors use करते हैं, that is also written means in degree Celsius only, not in Kelvin. But if we have to take out the temperature, अगर अपने को Kelvin में temperature चाहिए, तो ये units आप उसमें add और subtract कर सकते हैं. तो अब कैसे कर सकते हैं? We will discuss in examples. अभी अपन examples में discuss करेंगे. Okay. तो ये आपको समझ में आया? मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस ये आपको याद रखना है, बॉइलिंग 100 पे होता है ये आपको पता है, ये दोनों कंसेप्ट आपको पता है. ओनली द न्यू कंसेप्ट इज ऑफ केल्विन, दैट इज एसआई यूनिट. एसआई यूनिट मींस in physics we say SI unit is measured in MKS system, meter, kilometer, seconds. Okay, so 273 Kelvin and 373 Kelvin, these are the number and absolute value of Kelvin is 0. Absolute value कितनी है उसकी? 0. मैम हाँ, yes. मैम हम केल्विन को डिग्री केल्विन क्यों नहीं लिखते? डिग्री केल्विन अभी मैंने बताया आपको कि डिग्री केल्विन इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर में ही काउंट होता है, उसके जो इंटीजर्स है वो पॉजिटिव ही होते हैं. लेकिन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अपन माइनस में भी काउंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल -4, -3. इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसकी 0 से स्टार्ट होती है, साथ में ये नंबर्स पॉजिटिव ही होते हैं. दैट्स वाई अपन इसको आगे डिग्री नहीं लिखते. जैसे थर्ड यूनिट है एसआई यूनिट फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है 295 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, जैसे यहाँ पे इसका स्टार्ट होता है 0 डिग्री, इसका 273, इसका होता है 295. यहाँ पे डिग्री यूज हुआ है. वाई डिग्री इज यूज? बिकॉज ये जो फ़ारेनहाइट है, ये फ़ारेनहाइट भी यूनिट कंपेयर्ड में क्या होता है, इसमें माइनस के सिंबल्स भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल yesterday I have given you example of solid carbon dioxide. Okay, solid carbon dioxide का एग्जाम्पल दिया था मैंने, जो फ्रीजर में एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट होने के बाद में जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आइस हुआ है, तो उसमें क्या होता है, फ़ारेनहाइट में उसका नंबर होता है -78 और समथिंग अप्रोक्सीमेटली. ओके, परफेक्ट नंबर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली -70 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये जो कंसेप्ट है इसमें माइनस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे डिग्री वर्ड यूज होता है इन टेम्परेचर. डिग्री इज यूज्ड बिकॉज नंबर्स इंटीजर्स आर रिटन कैलकुलेटेड नेगेटिव ऑल्सो एंड पॉजिटिव ऑल्सो, बट नॉट इन केल्विन. केल्विन में नेगेटिव इंटीजर्स में आंसर नहीं होता है, नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, लिखा जाता है, इसीलिए डिग्री केल्विन में नहीं लिखते हैं. आफ्टर दैट ये चीज कैलकुलेट करने के लिए आई विल शो यू वन एग्जाम्पल. For example, the temperature is 35 degrees Celsius. The temperature is 35 degree Celsius. अब यहाँ पे डिग्री सी लिखा हुआ है. This temperature we have to convert to Kelvin. This temperature we have to convert to Kelvin. ये 35 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है, ये निकालने के लिए we have to write the formula. So the formula is temperature in Kelvin is equals to
अभी अपने को टेम्परेचर केल्विन में निकालना है, इसलिए अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू, आफ्टर दैट हियर वी हैव टू राइट द गिवन टेम्परेचर. गिवन टेम्परेचर मीन्स कॉमन टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में है. सो हियर विल बी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री Celsius plus. Now here plus sign is given because the concept is when we have to change temperature into Kelvin. अगर अपने को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, कन्वर्ट करना है, then we have to plus sign we have to put. तो अब यहाँ इसके आगे मैं क्या लिखूंगी? 273. What I will write? 273. रिपीट करती हूँ मैं. मैम 273 क्यों? 273 इसीलिए क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो जहाँ से स्टार्ट होता है डेट इज 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस के लिए हमेशा यहाँ पे आपको 273 से इसको प्लस करना पड़ता है, 373 से नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसकी 0 से स्टार्ट हो रही है और डिग्री सेल्सियस में 0 की वैल्यू यानी क्या है केल्विन की? 273. 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 273 के, ये दोनों भी इक्वल टर्म है. तो स्टार्ट कैसे होता है केल्विन? एब्सोल्यूट 0 से. यहाँ पे 0 की वैल्यू कितनी दी हुई है कंपेयर करने के बाद? 273. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर 273. ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त आपको सिर्फ माइंड में ये नंबर रखना है 273. ओके. सो अभी क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे? डिग्री सेल्सियस को के में कन्वर्ट कर रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग? वी आर कन्वर्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन. सी से के में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू प्लस 273. प्लस की साइन आएंगे बीच में, सिर्फ प्लस लगता है, ये आपको याद रखना है कि व्हेन वी कन्वर्ट सी टू के वी हैव टू ऐड 273. अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा इसमें आपको वैल्यूज पुटअप करनी है. वैल्यूज पुटअप कैसे करेंगे आप? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज गिवन 35 प्लस 273. कितना आएगा आंसर? आंसर कितना आएगा? टेल मी द आंसर. दिस विल बी 308 विल 9 नहीं बेटा, 5 plus 3 308. हाँ 308. So what is the value of K? 308. तो अब आंसर लिखने के लिए आप कैसा लिखोगे? आंसर इज 308 केल्विन. अगर किसी ने आपको बोला कि टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है तो आप उसका आंसर बता. डिग्री सेल्सियस है. हाँ, तो अपन ने आंसर केल्विन में निकाला ना. व्हाट वी आर डूइंग? वी आर कन्वर्टिंग. जैसे अपन मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं. क्वेश्चन अगर 500 मीटर है, 1000 मीटर है एंड वी हैव टू राइट इन किलोमीटर, तो क्या करते हैं अपन? 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. यूनिट चेंज हो गया, यहाँ पे यूनिट चेंज हुआ ना. तो वैसे ही यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, सो वी हैव टू चेंज द यूनिट. Why we have to change the unit? Because here we have to convert degree Celsius into Kelvin. The question is asked, how you will convert degree Celsius to Kelvin? Question ऐसा. तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट भी केल्विन का ही आएगा, डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना आएगा. यहाँ पे क्या आ रहा है? K इज इक्वल्स टू 308. क्या आ रहा है? K इज इक्वल्स टू 308. आपको सिर्फ 2 सिंबल याद रखने हैं. प्लस साइन when we convert C into K, after that 273 number. बाकी टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दिया होता है. One more example we will take. मैम. हाँ, yes. मैम केल्विन का है 273, मतलब बाकी इसका है आपने नंबर बताया ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, वो बुक में कहाँ पे? नहीं, बीच में स्टार्ट नहीं होता, आपको डायरेक्टली 273 से करना है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू 0 की वैल्यू है 273. तो 0 की वैल्यू हाँ में नहीं है क्या? वो आपने बताया ना. हाँ है ना, बुक में है ना, बुक में है. आपको हाँ लेसन रीड करना है आपको. इन द बुक इट इज गिवन दैट एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट 0
की वैल्यू जो केल्विन में होती है वो होती है 273 के, 273 होती है 0 डिग्री पे। सेवन पेज मैम पेज नंबर 7। मैम हाँ ओके बोलो। अगर डिग्री सेल्सियस माइनस में हो तो? डिग्री सेल्सियस माइनस में हो तो, हाँ अभी एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं ना। एक एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया और दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें टेम्परेचर माइनस में होता है। आंसर लेकिन आपका प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। ओके सो सेकेंड एग्जाम्पल वी विल टेक, जैसे माइनस में बोला है सो वी विल टेक -25 डिग्री सेल्सियस। ओके टेम्परेचर काय में चले गया, -25 डिग्री सेल्सियस में चले गया। इतना टेम्परेचर जाता नहीं है लेकिन फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग। ओके सो टेम्परेचर इन केल्विन फॉर्मूला विल बी -25 + 273। कितना आएगा आंसर बता, बता इसका आंसर कितना आएगा। 25 को माइनस करेंगे 273, कितना आंसर आएगा बताओ मुझे, टेक आउट फास्ट। -25 + 273 मैम 241 248 248 48 हाँ 248 248 248 248 yes 248 ओके 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 करेक्ट आंसर। सो व्हाट इज द वैल्यू 248। नंबर ये काय में आया, टेम्परेचर अपन ने नेगेटिव लिया, माइनस है, बट आंसर केम मैम ये प्लस प्लस। प्लस की साइन थोड़ी ना आएगी, नंबर इज पॉजिटिव ओनली। k इज इक्वल्स टू 248, इसलिए यहाँ पे डिग्री नहीं लगता है। इसलिए मैंने कंसेप्ट बताया आपको कि डिग्री क्यों नहीं लगता है, बिकॉज द नंबर आंसर कम्स ओनली इन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर ये फॉर्मूले में सिर्फ एक मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूं तो अपना दूसरा आंसर निकलेगा। व्हाट आई एम डूइंग, अब ये सब नंबर, ये फॉर्मूला ऐसा कैसे ही रहने देंगे, क्वेश्चन को चेंज करेंगे। क्वेश्चन में दिया मैंने, क्वेश्चन में क्या दिया मैंने, क्वेश्चन में क्या दिया, इन क्वेश्चन आई हैव गिवन 300 K। व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, 300 K। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आंसर विल कम व्हेन यू चेंज केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। अब आंसर अपने को काय में निकालना है, डिग्री सेल्सियस में। पहले क्या किया था, डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन था, आंसर काय में निकाला, केल्विन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में के लिखा हुआ है, ऐसा लिखा होता है क्वेश्चन में, के लिखा है तो आपको कन्वर्ट करना है इसको डिग्री सेल्सियस में। फॉर्मूला यही लिखेंगे, नो चेंज इन द फॉर्मूला, सिर्फ जहां जहां उसकी वैल्यू दी है वी हैव टू पुट। अब टेम्परेचर इन केल्विन कितना दिया हुआ है, कितना है, गिव मी द आंसर एनीबॉडी। 300 300 okay, so we will write here 300। after that temperature in degree celsius ये अपने को फाइंड आउट करना है। so डिग्री सेल्सियस ऐसा कैसे ही रहने देंगे, आखिरी में क्या है 273। 273 हाँ वैल्यू समझ में आई कैसे पुटअप की मैंने। नाउ मैथ्स में आपको पता है कंसेप्ट कि बड़ा नंबर जो है उससे छोटे नंबर को माइनस किया जाता है। यहाँ पे 300 बड़ा नंबर है तो अपन माइनस करेंगे इसको 273 से। इसको इंटर कन्वर्जन चेंज करना है, चेंज कैसे करेंगे, डिग्री सेल्सियस को आप यहीं ऐसे ही रहने दोगे और मैम ये 273 इधर माइनस में लेके जाएंगे। हाँ इधर लेके जाओ या इधर लेके जाओ, एक ही आंसर आने वाला है। ऐसा लिखोगे, कितना आंसर आया 27 डिग्री। 27 डिग्री सेल्सियस। अगर हाँ यस 27 आंसर 27 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया आपको, फॉर्मूला वही लिखा। एक और इसमें फॉर्मूला ध्यान रखने के लिए आप रख सकते हो कि व्हेन डिग्री सेल्सियस से अपने को अगर केल्विन में टेम्परेचर चेंज करना है वी आर एडिंग 273। और आप यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे अपन ने 273 को क्या किया है, माइनस किया है। माइनस हाँ, so when we are changing the temperature Kelvin to degree Celsius, we have to minus 273.
केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए माइनस करना पड़ता है 273, और जब अपन डिग्री से केल्विन में जाते हैं तो करना पड़ता है प्लस 273। ये दोनों कंसेप्ट आप ध्यान में रख सकते हो। शॉर्ट में फॉर्मूला अगर याद नहीं रखा तो भी चलेगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है C टू K में अगर जाना है, C से अगर आपको K में जाना है तो ये एक सीक्वेंस रिवर्स सीधा 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 जा रहे हैं अपन क्लॉकवाइज, इसके लिए इसको प्लस करना है। K से C में अगर अपन उल्टा जा रहे हैं वापस, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको -273 टेम्परेचर को करना है। आंसर आपका आ जाएगा। अब अगर टेम्परेचर अगर 0 डिग्री में है तो कैसा आएगा? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी उसका आइस है बना हुआ, सॉलिड मटेरियल है आइस, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ पे 273 लिखेंगे, आंसर कितना आएगा? 273 के। इसलिए तो मैंने आपको बोला कि टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग में 0 डिग्री होता है, वैसा ही केल्विन में 273 होता है। ये अपन ने अभी फॉर्मूले से प्रूफ भी किया। फॉर्मूले में अगर अपन ने ये वैल्यू डाली, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, T इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये प्रॉब्लम डिस्कस किया। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह पे आएगा 0 एंड 273 वी विल ऐड। व्हाई? बिकॉज वी आर चेंजिंग सेल्सियस टू केल्विन, अपन डिग्री सी को चेंज कर रहे हैं के में, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग प्लस, and when we are converting K to C, we will minus 273. Plus 273 minus 273, समझ में आया आप लोगों के? एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ एक और। जैसे हॉस्पिटल में अपन जाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल, या घर पे थर्मामीटर से अपन बुखार चेक करते हैं, ठीक है, अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, तो कोई बोलता है कि 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, 104 बुखार है, ऐसा बोलते हैं। तो अब ये जो 104 है, तो ये एक्चुअली में कौन सा यूनिट है? इसको के में कैसा लिखेंगे? के में कितना टेम्परेचर होएगा फिर इसका, ठीक है? तो कितना टेम्परेचर है? फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक 102, कितना है? 102। बिफोर दैट लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर 7th स्टैंडर्ड में जो डिस्कस किया था, उसमें एक बॉडी टेम्परेचर और नॉर्मल रूम टेम्परेचर बताया गया था। उसका रेंज था, अगर आपको याद होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ऐसा दिया हुआ था। तो रूम टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर अपना नॉर्मली डिग्री सेल्सियस में कितना रहना चाहिए? कितना रहना चाहिए? 37 टू 42। 37 डिग्री टू हाँ, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 102। तो ये नंबर तो ज्यादा हो गया, यानी फिर ये नंबर कौन से यूनिट में दिया हुआ है? के में, केल्विन में दिया हुआ है। अगर अपन इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मैंने केल्विन से टेम्परेचर में जाने के लिए आपको क्या बोला है? वी हैव टू माइनस, क्या करना है? माइनस। लेकिन ये सब टेम्परेचर निकालने के लिए फ़ारेनहाइट जो यूनिट है, फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट यूनिट का सपोर्ट लेके आपको वो सॉल्व करना पड़ता है। आपके टॉपिक में जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसमें आपको सिर्फ ये दो चीजें कन्वर्ट करने को बताई है, +273 एंड -273, जिसमें आपको टेम्परेचर को प्लस और माइनस करना है 273 से। ओके, यहाँ तक के किसी को डिफिकल्टी? जिसको नहीं समझ में आया है कि केल्विन में क्या करना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में क्या करना चाहिए? सिंपल थिंग, मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस। इन केल्विन melting is 273 and boiling is 373 and absolute value of Kelvin is 0, means 0 से start होता है। बीच के अलग अलग उसके रेज होते हैं, लेवल होते हैं, लेवल होते हैं जैसे मूविंग एयर, उसके बाद में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड -78 दिया हुआ इसका वैल्यू। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज बीच के होते हैं, लेकिन अभी अपने को फॉर्मूले में क्या डालना है? सिर्फ जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर निकालना है। In your book, 2 examples are there. In exercise also, more examples are given. So try to solve by using this formula. आपके आंसर निकल जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट किसी को प्रॉब्लम है क्या तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। आगे का टॉपिक देखेंगे फिर।
सबको समझ में आया है? Yes. ओके, you Yes. try to solve the problems. Yes. Try to solve. Yes. नहीं अगर आता है तो फिर अपन जब रिवीजन लेंगे लेसन का तब और डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इन द नेक्स्ट. पहले 2 क्वेश्चन हो गए. यस आई नो, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हो गए हैं. आपका होमवर्क भी रहने वाला है कि यू हैव टू सॉल्व दिस फर्स्ट 2 क्वेश्चंस. नाउ डिफरेंट चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर में देखिए, दैट इज चेंज इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज हो रहा है यानी उसका अलग अलग स्टेट में उसका कन्वर्जन हो रहा है. एक चीज इसमें और एक आती है, दैट इज लेटेंट हीट. पेज नंबर 7 पे ही दिया है लेटेंट हीट. पेज नंबर 7 स्टार्टिंग फर्स्ट पैराग्राफ दिस साइड, राइट हैंड साइड. लेटेंट हीट का प्रोसेस वहां से स्टार्ट होता है. एंड डेफिनेशन इज ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे 273 केल्विन वगैरह जो एग्जांपल्स दिए हुए टेक्स्ट बुक में उसके ऊपर का पैराग्राफ. नाउ योर कंसेप्ट इज लेटेंट हीट. लेटेंट हीट का मीनिंग होता है हिडन. क्या मीनिंग होता है? हिडन. हिडन यानी छुपा हुआ, जो दिखाई नहीं देता. तो ये कंसेप्ट इसमें क्यों यूज हो रहा है? वन एक्टिविटी वी विल डिस्कस. ऑल ऑफ यू नो आइस. आइस जब अपन फ्रीजर में से निकालते हैं, अगर अपने आइस का क्यूब हाथ पे रखा, क्या होगा? वी विल फील कोल्ड. अपने को ठंडा लगेगा. और थोड़ी देर में क्या ऑब्जर्व करेंगे अपन? वी विल ऑब्जर्व द आइस स्टार्ट मेल्टिंग. क्या हो रहा है? आइस स्टार्ट मेल्टिंग. लेकिन हाथ में रखते से वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है क्या? नो. हाथ पे रखते से वो मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होता है. दैट्स व्हाई when we keep the ice on the hand, it starts melting after some time. तो जब तक के आइस पूरा मेल्ट नहीं होता, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. जब पूरा आइस मेल्ट होएगा तभी उसका टेम्परेचर लो होते जाएगा. मींस हाई होएगा या फिर लो होएगा, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर या स्टेट अपन उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं. सो व्हाट आई हैव सेड, when the ice starts melting, आइस जब स्टार्ट मेल्ट होना स्टार्ट करता है तो वो पॉइंट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन का मीनिंग है सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड. ऐसी कंडीशन जिसमें सॉलिड का कन्वर्जन अगर लिक्विड में हो रहा है, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं मेल्टिंग. सो दैट्स व्हाई द प्रोसेस इन विच the solid starts melting is known as latent heat of fusion. आपको बुक में दिया हुआ है when the solid means 1 kg of solid starts melting. 1 किलो का जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट करता है. तो मेल्टिंग होने के बाद में जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें जो हीट एब्सॉर्ब हो रही है, तो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका अपोजिट है. इसमें क्या होता है? इसमें लिक्विड चेंजेस टू वेपर. लिक्विड चेंजेस टू वेपर इज इवेपोरेशन. इसमें जब अपन कोई भी चीज को बॉईल करेंगे, जैसे अपन वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो गैस पे रखते से ही पानी गर्म नहीं होता है. आफ्टर सम टाइम, तो जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, उसके बाद में उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता. थर्मोमीटर से जब एक्टिविटी प्रैक्टिकल वी विल परफॉर्म, यू विल अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल्स. आप अच्छे से समझोगे कि एक्चुअली में क्या होता है. सो व्हेन वी पुट द थर्मोमीटर इन दैट बीकर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज होने के बाद में वहीं स्टॉप हो जाता है. एंड इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसेस स्टार्ट. वेपर्स उसमें से निकलना स्टार्ट होते हैं. सो दैट पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो ये जो प्रोसेस हो रही है, जो हीट अपन उसमें सप्लाई कर रहे हैं, ये अपने को दिखाई भी नहीं दे रही है और चेंज भी नहीं हो रहा है. ये उसमें क्या है? हिडन है, छुपी हुई है. तो ऐसी छुपी हुई क्यों है हीट? क्योंकि जब तक के आइस मेल्ट होता है या वाटर बॉईल होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दूरी दूरी पे, व्हेन वी सप्लाई द हीट, जो छोटे छोटे दूरी पे जो उसके पार्टिकल्स है, उसके बीच में जो गैप है, वो गैप में वो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पास में आते हैं. पानी उबलते हुए सबने देखा है.
पानी उबलने के बाद क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल जो पानी रखा है उसके कंपेयर में काइनेटिक एनर्जी जब हीट सप्लाई करते हैं कोई भी सॉलिड मटेरियल को या लिक्विड मटेरियल को या गैसेस को, काइनेटिक एनर्जी इज हाई व्हेन वी अप्लाई द हीट। जब अपन उसको सप्लाई करते हैं हीट का तो उसका काइनेटिक एनर्जी और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पूरा लूज हो जाता है। तो मिक्सिंग के लिए जब अपन उसमें हीट देते हैं या फिर टेम्परेचर उसका क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, उसकी जो हीट है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को और पास में लाने के लिए अप्लाई होता है, इसीलिए वो अपने को हीट दिखाई नहीं देती। बर्फ का पानी अगर अपन गर्म करेंगे तो बहुत देर तक के बर्फ का पानी बनने के बाद में भी वो ठंडा ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उसमें जो हीट सप्लाई हुई है वो हिडन है, वो छुपी हुई है, इसीलिए उसको बोला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन है when solid material 1 kg of solid converts into liquid, that is latent heat of fusion. Detailed definition is given in your textbook. After that, opposite of latent heat of fusion is latent heat of vaporization. Vaporization में क्या होता है, conversion of liquid to gas or liquid to water vapor is known as latent heat of vaporization. तो ये concept अपन ने देखा, change in temperature, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। आपके बुक में एक्टिविटी दी हुई है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, आप उसको रीड कर सकते हैं कि कैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और कैसे डिक्रीज हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर बेटर वे। ओके, सो पेज नंबर 7 और 8 पे आपके जो भी कंसेप्ट दिए यू हैव टू रीड आउट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अदर टॉपिक्स। आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 and 2 रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड केल्विन। टेम्परेचर और केल्विन से रिलेटेड आपको जो टॉपिक है, प्रॉब्लम्स है, वो आपको सॉल्व करना है। सो लेटेंट हीट मींस हिडन। सर Hello, ma'am. Is it completed? yes sir, completed and screen is also out. Okay. You want to start the screen or you want to conclude the class? No, I want to conclude the class. Okay.